Hello students, today we are starting our accountancy class 12th, first unit, financial statements of not-for-profit organization. In short, we call it as NPO. This is the first module of this chapter. This chapter has a weightage of 10 marks in board exams. So, it is a very important unit and chapter and easy one also. So, let us start. Students, you are able to see three pictures. The first picture is of Kendriya Vidyalaya. Do you know what is the main objective of a school? Like our schools, Kendriya Vidyalayas, the main objective is to provide education to the students. The main aim of school is not to earn profit. The second picture is of Navjeevan Hospital. Dear students, the main objective of every hospital is to provide or is to treat the patients. The hospitals are not formed to earn profit. The third picture is of a sports club. You can see a playground also. This club, the main objective of the club is not to earn profit but to provide sports facilities to its members. So dear students, as you can see, a school, a hospital and a sports club, the main objective of these three organizations which I have shown you in the pictures is not to earn profit. Like in our previous class, class 11th, we studied that the main objective of any business is to earn profit. But students, here in these organizations, the main objective is not to earn profit. Their main objective is to provide services to the society. So students, आज हम start कर रहे हैं meaning से. So students, after watching this video, you shall be able to tell the meaning of NPO with its definition, the different primary objectives for which NPO is formed, the various features of NPO, various sources of income that are used by NPO in order to conduct its activities, then the difference between profit-making organizations and not-for-profit organizations. Dear students, in this video we shall be discussing also about the different types of funds which are used by NPO and then the accounting treatment of specific funds or the restricted funds. Definition of NPO. A not-for-profit seeking entity which does not usually involve in trading activities. That means these NPOs, they do not involve in the trading activities. What is trading? Sale and purchase of goods and services. But it engages in rendering the services to the members and society. But activities में ना करके वो services provide करते हैं. Rendering means providing services to its members and to the society. So students, what is the main purpose of NPOs? Is providing services for the welfare of its members and it's not for earning profit. जैसे कि हमने अभी explain किया ही है, स्पोर्ट्स क्लब की अगर हम बात करें, कोई भी आर्ट्स क्लब है जैसे पेंटिंग क्लब है या फिर हमारा पैराशूट ग्लाइडिंग क्लब है या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, स्टेट लाइब्रेरीज, सेंट्रल लाइब्रेरीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि ऑर्फनेजेस या फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इस्कॉन टेम्पल्स आपने सुना ही होगा. अगर हम इन सब इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन इंस्टीट्यूशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, बल्कि उनके जो भी मेंबर्स हैं और सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करवाना है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है. Their main objective is promoting the art and culture, literature, religion, sports, charity, education. So, इनका main objective art, culture, literature, religion, sports, charity और education को बढ़ावा देना है, ना कि profit earn करना. यहाँ पे मैंने primary objectives को दो को jot out कर दिया है आप लोगों के लिए. The first is to provide service to the society at a concessional or minimum price or at times even free of cost. Students, जैसे मैंने बताया कि mainly हमारे NPOs profit motive के लिए नहीं establish किए जाते हैं, तो कई बार तो वो free of cost भी चीज़ें provide करवाते हैं,
बट उन्हें अपने वर्किंग के लिए इनकम तो चाहिए ही, कुछ रिसिप्ट्स वगैरह चाहिए, कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम उनको चाहिए ताकि वो अपनी वर्किंग को अच्छे से स्मूथली परफॉर्म कर सकें। तो उस सिचुएशन में कई बार वो कंसेशनल रेट्स पे या कम से कम प्राइस के अंदर अपने मेंबर्स और सोसाइटी को प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव है they carry out all the operations of NPO without the expectations of a profit. That means जो भी वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसके पीछे उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ एनपीओ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा फीचर को हम डिस्कस करेंगे एंटिटी। एंटिटी क्या है? इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा ही था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब एक कंपनी अपने नेम पे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ ओन कर सकती है। तो सेम इसी प्रकार एक एनपीओ भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड एनपीओ इज कैपेबल ऑफ ओनिंग इट्स ओन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ which exists separately from its members. That means members जो भी एनपीओ के हैं उनकी प्रॉपर्टी से एनपीओ की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेपरेट होती है। मेंबर्स को उस एनपीओ की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता है। दे आर सेपरेट एंटिटीज, मेंबर्स आर सेपरेट एंड एनपीओ इज अ सेपरेट एंटिटी। सेकेंड हमारा फीचर है पर्पस। ये हम पढ़ ही चुके हैं कई बार कि what is the main purpose is to provide services to its members for their welfare. Now how these NPOs are formed? These NPOs are formed as a charitable society, clubs और trust. एक ऐसी societies जो charitable activities में involved होती हैं या sports club की हम बात करें, टूर्नामेंट क्लब की हम बात करें, तो ये हमारे क्लब्स होते हैं या ट्रस्ट होते हैं। वो ट्रस्ट के फॉर्म में इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। नाउ इनको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? एनपीओज आर मैनेज्ड बाय द ट्रस्टीज एंड द मैनेजमेंट कमिटीज। एनपीओ के मेंबर्स एक मैनेजमेंट कमिटी फॉर्म कर लेते हैं अमंग देमसेल्व्स एंड दैट मैनेजमेंट कमिटी और द ट्रस्टीज विच आर बीइंग सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स, दे मैनेज एंड परफॉर्म ऑल द major activities of the NPO. That means in the day-to-day activities they are involved. Next feature is funding or source of income. Students, the main sources of income for an NPO, I told you that they need funds for performing the activities. So from where those funds comes from to an NPO? They don't earn profit because their main objective is not to earn profit, but they need funds for their activities. So in that case, the funding comes from the donations, the membership fees, that means the members of the NPO, they gives fees to the NPO. Government also funds grants and gives donations to the NPO. Now regarding the accounts or the financial statements of NPO, the financial statement includes the receipts and payment account, income and expenditure account, and a balance sheet. These we will discuss later on in detail. Now, what are the major sources of income? See, donations, as I told you, donations, the donor gives some amount or property to the NPO, that will be known as donation. Government also gives some kind of grant or help to the NPOs. Sometimes private institutions also gives help to the NPOs in the form of private grants. Then the members of the NPO, they give subscriptions or some amount for their membership in the NPO. So that subscriptions which are received from the members is also a source of income of NPO. Next हमारा है income from investments. NPO अपने excess funds को बाहर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है और उससे जो भी इनकम होगी वो ऑब्वियसली उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। लीगेसीज, कई बार जो डिसीज्ड पर्सन होता है वो अपनी विल के अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉपर्टी या मनी एनपीओ के नाम कर देता है और वो जो अमाउंट एक एनपीओ रिसीव करती है बाय द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, दैट इज नोन एज लीगेसी। नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ इनकम है लाइफ मेंबरशिप फीस।
एनपीओ के मेंबर्स अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं टू द एनपीओज, दो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। देन एंट्रेंस फीस, जब भी कोई मेंबर न्यू ज्वाइन करता है एनपीओ में तो उस टाइम पे एनपीओ कुछ उनसे एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस के नाम से कलेक्ट करती है अमाउंट, और दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। एनपीओ के पास कुछ ओल्ड इक्विपमेंट्स होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होंगे, उनको बेच के भी सोर्स ऑफ इनकम के फॉर्म में एनपीओ यूटिलाइज करती है। रेंट ऑफ हॉल, अगर एनपीओ के पास कोई हॉल एक्स्ट्रा पड़ा था और उसको एनपीओ ने रेंट पे दे दिया है किसी को, सो दैट इज ऑल्सो अ इनकम फॉर एनपीओ। Now let us discuss difference between a profit making organization and not for profit making organization. Dear students, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द प्राइम मोटिव ऑफ दीज टू। व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन is to make profit, and what is the main motive of NPO is to serve the society and its members, that means give services to the society and to the members. Now what about profit sharing? In profit making organization the profit is divided among the owners, that means for example if it is a partnership then it will be divided among the partners. But in case of NPO, it is not shared among members, but it is utilized for the social welfare and is shown as a capital fund in the NPO. Now financial statements. जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा ही था सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर में कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। लेकिन अगर हम एक एनपीओ की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है। अकाउंट फॉर नेट गेन एंड लॉस। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचा था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से ही जानते हैं। बट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन एनपीओ, जो भी हमारा गेन और लॉस है उसको हम सरप्लस और डेफिसिट के नाम से जानते हैं। जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो उससे हमारा सरप्लस और डेफिसिट हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा बेसिस है डिफरेंस का एक्सक्यूज मी, कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल फंड। अगर हम एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं या क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या ओनर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो किसके हैं? वो ओनर्स के हैं। दैट मीन्स हम एक कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे रिसोर्सेज जो कि ओनर ने इन्वेस्ट कर रखे हैं इन द बिजनेस। बट अगर एक एनपीओ की बात करें तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स का अमाउंट है उसको हम कैपिटल फंड के नाम से लिखते हैं। एंड उसके अंदर हमारी मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस की अगर हम बात करें, लीगेसी की बात करें या सरप्लस की बात करें तो वो सारे सरप्लस, लीगेसी, मेंबरशिप फ़ीस या हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाते हैं और हम उसको कैपिटल फंड से नाम से जानते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट से। तो हम यहाँ पे इसको मेजर है कि हम इसको किस नाम से लिखेंगे, जो भी हमारा अमाउंट है, रिसोर्सेज हैं एनपीओ के अंडर कैपिटल फंड। स्टूडेंट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया था जिसके दो पार्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमें मेजर डिस्कशंस करनी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल हमारे कैश अकाउंट की तरह ही है जैसा लास्ट ईयर हम लोगों ने बनाया था कैश अकाउंट या कैश बुक। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर उसी टाइप से हमारे ये अकाउंट बनेगा। और अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये बिल्कुल सेम एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और बैलेंस शीट तो सेम उसी फॉर्मेट में बनेगी जिस फॉर्मेट में हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया था। बट कुछ चेंजेस होंगे तो वो हम लेटर
अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंड्स जो कि एक एनपीओ यूटिलाइज करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? जब कोई हमारे ऊपर पाबंदी लगा देता है कि हमें जैसा वो कहेगा वैसा ही करना है, या एक पाबंदी है जिसको हमें फॉलो करना है, हम उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो फंड्स जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है बाय द मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है या फिर डोनर ने लगा दी है, मतलब जिसने डोनेशन दिया है या वो अमाउंट दिया है जिसके ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ये जो भी अमाउंट है, फंड है, उसको हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे। बट हमारा जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मीन जिसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगी हुई है। इसका मतलब in uses of funds they do not carry any restrictions with respects to its use and mainly utilized only for the general operations of a business. That means इसमें कोई restrictions नहीं होता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। हम इसको अपने बिजनेस की जनरल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट बिल्डिंग फंड है, पेविलियन फंड है, इंडोमेंट फंड है। और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करेंगे तो हम इसको किस नाम से जानेंगे? जनरल फंड और कैपिटल फंड, जिसके अंदर हम सरप्लस को ऐड कर देते हैं और डेफिसिट को डिडक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा दोनों फंड्स में हमने डिफरेंसेस करें। दो टाइप्स के फंड हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड्स ट्रीटमेंट। Students, as we have discussed that NPOs creates a specific fund and that specific fund is used only for some specific purposes which have been told by the donor or by the management, decided by the management. So students, as you can see, I have written the examples also, the different funds which the NPO can have: building fund, library fund, sports fund, tournament fund, prize fund, etc. Dear students, all the incomes and the receipts during the year which are related to the fund are added. That means अगर हमारा बिल्डिंग फंड है और उस बिल्डिंग फंड से हमने कोई भी इनकम या रिसिप्ट करी है, मान लीजिए डोनेशन किया है बिल्डिंग फंड के लिए, डोनेशन मिला है हमें बिल्डिंग फंड के नाम से, तो उसको हम बिल्डिंग फंड में ही ऐड कर देंगे। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फंड ड्यूरिंग द करंट ईयर आर डिडक्टेड। और स्टूडेंट्स, अगर कुछ एक्सपेंसेस करे हैं रिलेटेड टू दैट फंड, जैसे कि बिल्डिंग फंड, हमने बिल्डिंग के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करा या उसकी रिपेयर वगैरह करवाई, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को बिल्डिंग फंड से ही माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इन रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के साथ कर रहे हैं उनको हम अपनी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सो वी विल शो ऑल द फंड restricted funds treatment on the liability side of balance sheet until and unless the fund is more than the expenses. That means all the incomes and the balance of the fund is more than the expenses, then we will be showing it in the liabilities. Otherwise, if expenses are more than the incomes and receipts, then we will show it in the income and expenditure account. Also students, NPO can invest any part of the fund to the outside securities or in order to earn income from those investments. Such investments will be treated as assets and they will be shown on the asset side of the balance sheet. The income which are earned on these type of investments, they will be income. That means the receipt of the interest on investments will be added to the specific fund. स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि है, इसमें हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ऑन 31 मार्च 2018। आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। अगर हम स्पोर्ट्स फंड की बात करें तो हमारे पास स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस हमें दे रखा है 5 लाख। और स्टूडेंट्स, एनपीयू ने क्या किया है, इन्हीं स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कुछ कर दिए हैं 5 लाख के, जिसके ऊपर वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रही हैं, 10%।
तो जैसे अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स तो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में चली जाएंगी, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना भी हमने इंटरेस्ट अर्न किया है 10% के हिसाब से, वो हमारे स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देंगे हम। थर्ड आइटम हमारा क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। हमने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स में पे इंटरेस्ट अर्न करा है, तो अब इंटरेस्ट अर्न करा है 37,500। बट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बहुत ईजी कैलकुलेशंस है। 5 लाख का 10% 50,000 होता है, लेकिन अभी तक हमने रिसीव कितना किया है 37,500, तो कुछ अभी भी हमारा इनकम रिसीव करना बाकी है। दैट मीन्स एक्रूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी भी इजी कैलकुलेशन है। 50,000 में से 37,500 बचे 12,500, तो जो भी एक्रूड इनकम है वो हमारा करंट एसेट बनता है। ये आप सब जानते ही हैं, लास्ट ईयर पढ़ा भी है। एक्रूड इनकम इज आर करंट एसेट। दैट मीन्स वो इनकम जो हमारी ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमने रिसीव नहीं की है, बट वी विल रिसीव इन द फ्यूचर। सो हम उसको अपना एसेट रीड कर लेते हैं और एसेट साइड में दिखाएंगे। तो 50,000 में से 37,500 जब हम माइनस करेंगे तो 12,500 हमारा आ गया एक्रूड इंटरेस्ट, उसको तो हम अपने एसेट साइड में दिखा देंगे। लेकिन स्पोर्ट्स फंड में हम कितना ऐड करेंगे? स्पोर्ट्स फंड में हम टोटल ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना रिसीव करना चाहिए था वो हम ऐड करेंगे। दैट मीन्स 55 लाख का 10% 50,000 हम अपने स्पोर्ट्स फंड में ऐड करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है बेटा वो 1,20,000 का डोनेशन है। डोनेशन हमारी इनकम है और इनकम है दैट मीन्स हमारे फंड को इंक्रीज कर देगी, तो वो ऐड हो जाएगी। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड स्पोर्ट्स प्राइजेस हमने दिए तो एक्सपेंस हुआ होगा, तो ये हमारे फंड को कम कर देगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। इस पे एक्सपेंसेस करे हैं स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करवाते वक्त, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, ये भी हम माइनस कर देंगे। मैं अभी आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट सेम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप में डिस्कस किया था। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लाइबिलिटीज आता है, एक अमाउंट कॉलम होगा, और राइट हैंड साइड में हमारा एसेट्स है और अमाउंट कॉलम है। जितनी भी एनपीओ की लाइबिलिटीज है वो सब हमें यहाँ मेंशन करनी है और एसेट्स हमें एसेट्स वाले कॉलम में मेंशन करनी है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमें लाइबिलिटी साइड में करनी है। तो जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये स्पोर्ट्स फंड का ही है। मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर भी लिया है, तो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड हमारा ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे सबसे पहले। तो ओपनिंग बैलेंस आपका है 5 लाख। उसके बाद इसमें हम डोनेशंस ऐड कर देंगे। डोनेशंस हमें दिया हुआ है डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड हमारा 1,20,000 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया 6,20,000। उसके बाद इनकम एक और है जिसको कि हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें टोटल ड्यूरिंग द ईयर हमें कितनी रिसीव करनी थी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है 5 लाख, और उस पर हमने 10% के हिसाब से रिसीव करना है इनकम, तो हमारी इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000। सो टोटल हो गया 6,70,000। अब इसमें से इनकम्स और हमारी कोई है नहीं, अब हमारा सीधा एक्सपेंसेस है। तो अगर हमारा फर्स्ट एक्सपेंस जो हमें दिया हुआ है वो है प्राइजेस अवॉर्डेड, तो प्राइजेस अवॉर्डेड को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 लाख को, तो हमारे पास बच गया 5,70,000। दूसरा जो हमारा आइटम दे रखा है एक्सपेंस का वो एक्सपेंसेस ही है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट करा हमने 15,000, वो माइनस हमें करना है
इसके बाद जितना भी अमाउंट हमारा बचा है वो हम अब अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो 5,55,000 हमारा हुआ। तो अब हमारा स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस कितना है? 5,55,000। एसेट साइड में मैंने जैसे आपको बताया कि स्पोर्ट्स फंड का कुछ अमाउंट एनपीओ ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर, तो हम एसेट साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से ही। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपको 5 लाख दे रखा है, एज इट इज आप 5 लाख लिख देंगे। बट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर ही लिया है कि यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो हमें करना चाहिए था 10% के हिसाब से 50,000 रिसीव करना चाहिए था। लेकिन जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, अभी तक हमने रिसीव कितना किया है? 37,500। तो 37,500 को हम यहाँ से माइनस करेंगे, 12,500 हमारा एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि हमें एसेट साइड में एज एन एसेट शो करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, बैलेंस शीट हमारी बनके तैयार हो गई है और बैलेंस शीट का अमाउंट लाइबिलिटी साइड का टोटल 5,50,000 है और एसेट साइड का हम 5 लाख स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इंटरेस्ट 12,500। जब भी हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए स्पोर्ट्स फंड का, तो इस ऐसी बैलेंस शीट की हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे जैसा कि है। और स्टूडेंट्स, एक बात और आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडिंग ऑल द इनकम्स इज 6,70,000 एंड आर एक्सपेंसेस आर 1 लाख प्लस 15,000, 1,15,000। तो हमारे फंड ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो उस सिचुएशन में हमने लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया। बट कई बार हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फंड हमारा कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें इसको कैसे डील करना है, ये जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।